Welcome everyone in this lecture on similar triangles. The very first thing which comes to our mind when we talk about similar triangles is that what is similarity and how it is different from congruency. If you are studying this chapter similar triangles, then you must have gone through the chapter congruent triangles already. In class 9th or in previous classes you must have gone through congruent triangles. Now what is congruency? We will go back and we will throw some light on revision part of congruent triangles, that is congruency and similarity. We will see the difference also. Okay, so here we have congruent figures. And here we have similar figures. Okay, now the difference between congruent figures and similar figures is that congruent figures are exactly same, looking exactly same, like two 5 rupee coins or two 10 rupee coins or two 10 rupee notes which are of same shape and size. So we talk about same shape and size. When we have same shape and size, then we say the figures are congruent, like two coins, okay, of same size and same shape. Here both the figures are circular in shape, so the shape is circular in both the figures and the size is same. I have drawn of same radius. So these are congruent figures. Now the difference between congruent figures and similar figures is that similar figures have same shape but may have different size. Same shape but different in size. Different in size, that is one circle can be smaller, other circle can be bigger. Both the figures are circular, so both are circles. Shape is same, circular shape, but both are of different radii. So we will say they are of different size but same shape. Here the shape is also same, both are circular and both are also of same radius. So we will say both are congruent. Now what are congruent figures? Congruent figures are those which have same shape and same size, but similar figures are those which have same shape but different size. Okay, like you can draw a square and a bigger square. These are similar squares. The shapes are similar. Here you can draw two triangles. Both the triangles are congruent because both have same shape, same size. Same shape, same size means congruent, and same shape, different size means similar. Okay. After understanding what is the difference between congruent and similar figures, we will mainly talk about similar triangles. Okay. And there is a theorem regarding similar triangles which is called Thales theorem, or you can say BPT, that is basic proportionality theorem. So this Thales theorem says that in a triangle ABC, if we draw a line parallel to the base, in a triangle ABC, if we draw a line parallel to the base, this line is parallel to the base, then the line divides the triangle in same proportion. What does it mean? भाई इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है
तो ये वाली लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AD दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन इक्वल हो जाएगा इस पोर्शन अपॉन इस पोर्शन के, है ना। तो हमें इसमें थेल्स थ्योरम में हमें मिलता क्या है? हमें क्या दिया जाता है? हमें एक ट्रायंगल दिया जाता है और एक लाइन दी जाती है जो कि पैरेलल है बेस के। सो गिवन इज ट्रायंगल ABC एंड DE parallel to BC. This is given to us. Now what do we have to prove in it? To prove, we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. This is what we have to prove. Now there must be some construction also, so we will draw some construction. What construction we are going to draw is from point D, उस point D से इस साइड पे परपेंडिकुलर बना देंगे एक हम लोग, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे बना दिया और एक E पॉइंट से परपेंडिकुलर इधर बना देंगे, ठीक है। और इनको नेम कर देंगे MN। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने बनाए हैं इनको आपने नेम कर दिया है MN। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक करके हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। वो जो दो चीजें हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं उनमें से पहली चीज तो ये है कि कोई ट्रायंगल अगर इस तरीके का बना हुआ है तो उस ट्रायंगल की हाइट कहां पर है। यहां से मैं हाइट चाहता हूं तो उसकी हाइट हमेशा बाहर रहेगी, ट्रायंगल के बाहर उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूं कि एक ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर भी हो सकती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दें, तो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम देखो इस टाइप के एक ट्रायंगल को, DEC ट्रायंगल को देखो, है ना। तो DEC ट्रायंगल को अगर देखें तो D पॉइंट से हाइट कहां जा रही है उसकी, ये तो बेस हो गया। DEC ट्रायंगल का अगर ये बेस है तो ये हाइट हुई उसकी, ये देखो बाहर हाइट जा रही है उसकी, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल देखें DBE ट्रायंगल, तो DBE ट्रायंगल की जो हाइट है वो बाहर जा रही है इस तरीके से। आपने क्या किया है? आपने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया है और मैं कह रहा हूं कि ये इसका बेस है, ये बेस है, तो हाइट बनाओ इस ट्रायंगल की। अब आपको बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे और हाइट को ऐसे करके यूं बनाना पड़ेगा। ये देखो ये बेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, ये हाइट बन रही है इसकी। तो एक ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर भी हो सकती है और उसके अंदर भी हो सकती है और उसकी एक साइड भी हो सकती है। तो पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख ली कि ये जो DEC ट्रायंगल है, सॉरी BEC है और DCE ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की जो हाइट्स हैं वो बाहर हैं। वो ये MD हाइट है और NE हाइट है उसकी, ठीक। दूसरी चीज जो हम लोग देखना चाहते हैं वो ये है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये बेस है XY, तो इस XY बेस पे बनने वाले सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अगर इन सारे ट्रायंगल्स का हाइट देखी जाए तो हाइट क्या है, वो AZ। इस ट्रायंगल की हाइट अगर देखो तुम
देखो फिर से बना के दिखा रहा हूं तुम लोगों को। अगर एक दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ठीक है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ना बना करके ऐसे बनाएं तो भी उस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, यही होगी। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे बनाया जाए तो भी उसकी हाइट क्या होगी, यही होगी। उस ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे क्या होगी, यही होगी। तो ये जो हाइट है ट्रायंगल की, जो हमेशा हाइट बन रही है वो h ही रहेगी, और बेस हम सेम ले रहे हैं, तो हर ट्रायंगल का एरिया HB ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहता है। तो ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव सेम एरिया। अब यहां पे देखो DE लाइन और BC लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और DE बेस मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, DE को बेस मान लें, तो DE बेस पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से देखो, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ठीक। अब हम लोग थेल्स थ्योरम करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हमने कर ही लिया है, जॉइन DC BE, ड्रॉ परपेंडिकुलर DM एंड EN, ठीक है। अब हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, हमारा ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AE इंटू उसकी हाइट DM, ठीक है। अगर बेस हम लोग ले रहे हैं AE बेस है हमारा, तो DM इस ट्रायंगल की हाइट हो गई, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सो इन दिस ट्रायंगल इफ वी टेक दिस एज द हाइट देन दिस इज द बेस, सो आई हैव टेकन बेस एंड हाइट, हाफ बेस हाइट। अगेन इन ट्रायंगल ADE, again in the same triangle the area will be same, but this time I am going to take AD as the base, so NE will be the height, okay. So this time we are going to take area of ADE triangle as half, base is what, AD, and height is what, NE. Now because area of both the triangles is same, so we can write half AE into DM is equal to half AD into NE. Half and half will cancel out. Now you can write the ratio AE upon AD is equal to NE upon DM. This is equation number 1. Okay. देखो सेम तरीके की चीजें हमने एक के नीचे एक लिख दी हैं, जैसे AD इस तरफ से और AE इस तरफ से, तो AD और AE को एक रेशियो में हमने बना दिया है, और ये जो हाइट्स थी NE और DM इनको एक रेशियो में बना दिया है इधर। तो रेशियो को बना करके ऐसे करके हमने लिख दिया है, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, दो चीजें अभी मैंने पहले डिस्कस करी है ना इस थ्योरम से, वो क्या थी कि किसी भी ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर भी हो सकती है। जैसे DEC ट्रायंगल की हाइट क्या है, DEC ट्रायंगल की हाइट क्या है, अगर EC उसका बेस है तो उसकी हाइट हो जाएगी DM, ठीक है, तो उसकी हाइट DM हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एरिया इन ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट DM. ओके, इन ट्राइंगल DEB, एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू हाफ दिस टाइम DB इंटू NE. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस आर इक्वल. अभी हमने डिस्कस किया है, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर है, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा. क्योंकि पहला ट्राइंगल, देखो हम ट्राइंगल को अलग से बना के दिखा रहे हैं, ये इस ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं. पहले तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इस ट्रायंगल का बेस है D और पैरेलल लाइन के ऊपर है ये कॉर्नर, इसका वर्टेक्स. दूसरा ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल का बेस भी क्या है D और इसका भी कॉर्नर का है पैरेलल लाइन के ऊपर है. मतलब इसका भी वर्टेक्स कहां पर है? पैरेलल लाइन के बीच में ही है. तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? सेम हो गया. अभी हमने प्रूफ किया है उस चीज को. तो वी कैन राइट से दैट एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEB. सो हाफ EC इंटू DM इज इक्वल टू हाफ DB इंटू NE. अब फिर से हम क्या करेंगे? DM और NE का रेशियो बना लेंगे और हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे और EC अपॉन DB इज इक्वल टू लिख देंगे NE अपॉन DM. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें. इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप देखें तो आपको दिख रहा है कि NE अपॉन DM दोनों में ये NE अपॉन DM यहां से इक्वल है इसके और यहां से इक्वल है इसके. तो ऑब्वियस है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम 1 and 2. वी कैन राइट AE अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन DB. ये हमने प्रूव कर लिए थे इस थ्योरम. ठीक है ना, पहली चीज ये हमने प्रूफ कर ली. अब इस चीज को वहां ट्रायंगल में जाकर के देखो, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन. ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं AE अपॉन EC. इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो. ठीक है, तो AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB. अब आपको जो मिल रहा है वो क्या है? वो है AE अपॉन EC. AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB. AD अपॉन DB. तो दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन. और यू कैन से द रेशियो ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग इसी को और थोड़ा सा जो है दूसरी तरीके से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं इसमें से. उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी. आई एम रिमूविंग दिस. यू कैन राइट इट बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके, I am going to write this portion here. AE upon EC is equal to AD upon DB. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा EC अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन AD. दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए. EC अपॉन AE प्लस 1 इज इक्वल टू DB अपॉन AD प्लस 1. LCM ले लीजिए. EC प्लस AE अपॉन AE इज इक्वल टू DB प्लस AD अपॉन AD.
अब ये प्लस ये कितना है, EC और AC का सम कितना हो गया, AB अपॉन AE इज इक्वल टू DB, DB एंड AD का सम कितना हो जाएगा, AB सॉरी AC एंड AB अपॉन AD। तो ये एक और रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से हमें ये 3 रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें से ये 2 रिजल्ट आप देख सकते हैं, तीसरा रिजल्ट आपने थोड़ा सा और डिराइव कर लिया है। ये हमारा थेल्स थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस थेल्स थ्योरम की हेल्प से आप इन रिजल्ट्स को इस ट्राइंगल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन, और यू कैन से this portion upon this portion is equal to this portion upon this portion, or you can say this whole side, see AB whole big side upon small side is equal to big side upon small side, okay. The ratio of big side to small side is equal to the ratio of big side to the small side again. यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, एक बड़ा ट्राइंगल है पूरा ABC ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल है ADE। तो बड़े ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो छोटे ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको थेल्स थ्योरम से मिल गई, ठीक है। थेल्स थ्योरम के बाद हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। So in this lecture we will prove the converse of Thales theorem. Thales theorem we have already proved. If you have not gone through that, please go through the previous lecture before seeing this lecture, okay. So in converse of Thales theorem we will prove the opposite. Whatever was given to us in Thales theorem, now we will prove that, and whatever was to prove in Thales theorem is given in this theorem, okay. What does converse means? Converse means just opposite. So whatever was given in Thales theorem will become to prove in this theorem, and whatever was to prove in Thales theorem it will become given in this one, okay. So if you have gone through Thales theorem, you must have understood that if a triangle has a line parallel to the base, then the proportions are equal, or the ratios of the remaining sides are equal. So in this theorem it is given that one line is I have drawn parallel to the base, okay, which is DE dash, and what is given to us? Given is the ratio are equal, okay. So let us see the given portion of converse of Thales theorem. Given is AD DB is equal to AE upon EC, okay. And to prove that DE is parallel to BC. Now we have by construction we have taken a line DE dash. Draw DE dash parallel to BC, okay. Let us say हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो DE लाइन है ये पैरेलल नहीं है। लेट अस सपोज DE लाइन पैरेलल नहीं है और DE डैश लाइन पैरेलल है जो हमने बनाई है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि DE लाइन पैरेलल ना होकर के DE डैश लाइन पैरेलल है, तो हमने ये DE डैश लाइन को पैरेलल बना दिया है। अच्छा, अगर DE डैश लाइन पैरेलल है बेस के तो थेल्स थ्योरम लगेगा उसमें। तो बाय थेल्स थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन DB का रेशियो AE डैश
अपॉन ई डैश सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। डी डैश लाइन क्या है? डी डैश लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के, तो थेल्स थ्योरम लगेगा इसमें। अच्छा, इन्होंने गिवन में भी दिया हुआ है कुछ, इक्वेशन नंबर 1 वाज गिवन टू अस, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम ये देख सकते हैं, बहुत इजीली हमें दिख रहा है कि AD अपॉन DB इसके भी इक्वल है, AD अपॉन DB इसके भी इक्वल है, तो AE, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 AE अपॉन EC इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें दोनों साइड में तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अच्छा, AE प्लस EC कितना है? डायग्राम में देख करके बताइए, AE प्लस EC कितना है? AE प्लस EC है AC। तो इस इक्वेशन से आपको मिल रहा है AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अगेन अपॉन E डैश C, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C, और E डैश C इज इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई E डैश C और EC इक्वल लाइन है, इसका मतलब हुआ E डैश कोइंसाइड्स विद E। E डैश कोइंसाइड्स विद E। अच्छा, तो E डैश अगर कोइंसाइड कर रहा है E के साथ, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इट मींस DE डैश इज इक्वल टू DE। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम इस पॉइंट को यहां पे ला रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हम यहां पे ले आएंगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी, मतलब DE डैश वाली लाइन DE बन जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि DE डैश पैरेलल था BC के, तो और DE इक्वल है DE डैश के, तो DE पैरेलल हो गया BC के। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा।